Yeshu. Yeshu. As Brother Prashant shared, प्रशांत ब्रदर जे होते आपल्यामध्ये ते जे सांगत होते, I too don't have any words to express how much joyful, blessed, and privileged I feel inside. मला देखील त्यांचा सारखा शब्द कमी पडणार हे बोलण्यासाठी की किती आनंदित आहे मी तुमच्यामध्ये. I'm remembering when I see this young boy, I'm a bit older. I'm remembering what I've been doing since 25 years. 25 वर्ष मी काय करत होतो हे मला आठवतं ह्यांना तुम्हा सगळ्यांना बघून. At the age of 16, 17, 18 years old, when I joined the Bible college in Hyderabad, 16 वर्षी मी बायबलच्या कॉलेजमध्ये माझा शिक्षण करत होतो. where I was studying in Hyderabad, हैदराबादमध्ये मी माझं शिक्षण घेत होतो बायबलचं. our pastor used to have a weekly prayer on Friday night. आमचे पास्टर जे होते दर सप्ताह शुक्रवारी रोजी असेच मीटिंग घ्यायचे. There were not so many people like this. पण इतके खूप लोक नव्हते, आम्ही थोडे होते. There were only few people, खूप कमी लोक होते आम्ही. not even 10, 10, मला वाटतं 10 देखील नव्हते. sometimes 6, 7, कधी कधी 6, 7 असे लोक होते. sometimes 4, कधीतरी 4 लोक होते sometimes even 3. आणि कधीतरी 3. Pastor, his wife, and somebody from our college student. पास्टर, त्यांची पत्नी आणि मी आणि अजून एक. Some students who were studying in the Bible college. आणि काही जे लोक बायबल त्या कॉलेजमध्ये शिकत होते. I have a good friend in Hyderabad. माझा एक चांगला मित्र आहे हैदराबादमध्ये. When we were joining that all-night prayer, आणि पूर्ण रात्राची जी प्रार्थना उपास प्रार्थना होती, it was from 10 to 4 o'clock. आणि रात्री 10 ते सकाळी 4 पर्यंत. Sometimes 10 to 2, 3 o'clock. कधी कधी 10 ते 2 किंवा 3 वाजा. When I was in Bible college, आणि मी जेव्हा बायबलचे त्या I used to कॉलेज wake up at 4 or 4:30, 5, because 5 we have to be wake up. 4 ते 5च्या दरम्यान मी सकाळी उठत होतो. But I had to wake up early, little bit early, around 4:30, 4:45. म्हणून त्यामुळे मी 4:30 किंवा 5 ह्या दरम्यान उठत होतो. As Bible college student, we have to pray. आणि हे नक्कीच आम्हाला म्हणजे सकाळी उठून प्रार्थना करायचा असं सवय I होती. am telling about 25 years ago story. म्हणजे मी हे गोष्ट 25 वर्षाच्या अगोदरची गोष्ट तुम्हाला सांगत आहे. I used to wake up to pay my school fee, college fee. I used to go to milk shop and distribute the milk to all the houses in Hyderabad city. आणि ते कॉलेजच्या फीस भरण्यासाठी त्या पैशासाठी मी सगळीकडे जाऊन सकाळी उठून दूध वाटप करत होतो. Just 400 rupees they paid. फक्त 400 रुपये होते. I used to take milk bags and go by cycle door to door apartment and drop the milk. आणि दुधाची ती बाटली जी होती ते घरोघरी जाऊन वाटप करायचो. Come back from the job. आणि ते वाटल्यानंतर घरी There यायचो. were duties in the college. आणि त्या बायबल कॉलेजमध्ये त्यांचे ते वेगळे ड्युटी होती. Sometimes cleaning the floor. आणि कधी रूम साफ करायचं, Sometimes cleaning the toilets. कधी कधी ते टॉयलेट देखील साफ करायचं, Sometimes cleaning the vessels. कधी भांड्या पण धुवायचे, Sometimes cutting the vegetables. कधी भाजी तरकारी कापायचे. All kinds of jobs were there. आणि सर्व अशा प्रकारचे कामं होते तिकडे. That was the training for us to become more humble like Jesus. आणि हे सगळ्या कामा करण्यामुळे आम्हाला नम्रता काय आहे ते शिकवलं गेलं. Hallelujah. Hallelujah. Jesus came not to be to give his life as a ransom, as Mark 10:45 says. We were trained to become like Jesus as servants of. या सगळ्या कामामुळे आम्हाला शिकवलं गेलं होतं की येशू सारखा जो सेवा करायसाठी आपल्याला आला, सेवा घेण्यासाठी नाही आला, हेच मला शिकवलं गेलं So होतं. God trained us like that. आणि ते देवाचा धन्यवाद की ते आम्हाला सगळ्यांना आता शिकवलं गेलं. Again 8 o'clock breakfast, 8:30 and get ready, 9 o'clock worship in the college and classes would begin. आणि 8 वाजता मग नाश्ता वगैरे करून तयार होऊन सगळं आम्ही क्लासमध्ये जायचं. 1 hour lunch break. आणि एक मध्यंतरी 1 तास Up to 4 o'clock. जेवणाचा लंच ब्रेक होता 4 वाजेपर्यंत. Up to 4 o'clock classes. आणि 4 वाजेपर्यंत परत क्लास होता. Evening, those who want to go ministry, they used to go. आणि परत सेवासाठी संध्याकाळी जायचं असेल ते जाऊ शकतं. I used to go to slums where labor people used to live, who come from different places, and I used to teach their children. मी असे गोरगरीब वस्तीत जायचं, तिकडे जाऊन त्या मुलांना शिकवण करायचं. And come back again, eat lunch, and 10 o'clock lights off. आणि रात्री येऊन परत जेवण करून 10 वाजता झोपायला जायचं. And in that week, on every Friday, we were asked, I had a zeal to become like Apostle Paul and Peter. I wanted to be like them.
आणि मला पौलुस सारखा व्हायचा होता म्हणून मी त्या वयापासूनच माझी ती चिकाटी होती. That's why I joined the Bible college and joined the pastor to pray on every Friday. आणि म्हणून मी बायबल कॉलेज जॉईन केलं. मग पास्टर सोबत ते दर शुक्रवारी प्रार्थना पण राहायचो. My friend he jokes me even last time when I went to Hyderabad, he remembered me. आणि माझा मित्र जे आहे त्याने ही आठवण करून दिली. Shanta, you pray, you will round and round will come. You don't know when you will fall asleep. आणि तू प्रार्थना करताना कसं कसं झोपायला घेणार ते देखील कळणार नाही. I didn't know when I would fall asleep आणि मला हे खरंच माहित नव्हतं की कसं कधी मी झोपायला because my body was tired, कारण माझा शरीर इतका दमलेला गेला होता ह्या सगळ्या कामावर. but I had a zeal. पण माझ्याकडे ती चिकाटी होती. Hallelujah. So hope you will not fall asleep like that. हा, पण मला आशा आहे की तुम्ही लोक झोपणार नाही And we will not keep you until 4 o'clock. आणि ते तुम्हाला लोकांना 4 वाजेपर्यंत तिकडे बसून देणार नाही. But gradually, पण असा होता when I was growing, जसं मी वाढत चाललो it built my faith. माझा विश्वास अजून मजबूत झाला. So when I went to villages and towns, आणि मी जेव्हा गावी गेलो, शहरात गेलो, and I used to conduct all night prayers. आणि मी अशाच प्रकारे रात्र प्रार्थना घ्यायचा. In a small village like this, आता असं ह्याच प्रकारे we prayed in the house. छोट्या घरात आम्ही Only 3 families came. 3-4 परिवार, Old women and men used to come and pray. आणि वृद्ध लोक पण यायचे तिकडे. Today the 3 families are very strong in that आणि village. त्या गावात ज्या परिवार फॅमिली होते ते आता खूप मजबूत विश्वास. When they recently built the house of God, a big building, आणि जेव्हा ते लोकांनी एक आपलं घर बनवलं, the same village people came and put an idol in front of the house of God. आणि त्याच गावाचे लोक आले आणि काही एक मूर्ती ठेवलं And तिकडे. they wanted to build a big temple. आणि ते त्यांचं देवाचं ते काही मंदिर बनवायचं होतं. Nothing happened until today. पण असं काहीच झालं नाही आतापर्यंत. Hallelujah. Prayer is powerful. प्रार्थनात सामर्थ्य आहे, Worship is powerful आराधनात सामर्थ्य आहे, because God is there. कारण आपला देव जिवंत आहे. Amen. John 4:25 says, 4:24-25, God is looking for the people who worship in truth and spirit. यहुन्ना 4-24 मध्ये लिहिलेलं आहे की देव बापा शोधत आहे जे त्यांना पूर्ण हृदयात आणि आत्म्यात स्तुती आराधना करतील. God listens to the prayer of upright and righteous. परमेश्वर जे आहे ते आपल्या सगळ्या धार्मिक व्यक्तींच्या प्रार्थना ऐकतोय. Hallelujah. Hallelujah. So my friends, as brother already shared, that we are washed through the blood of the Lamb to be restored to the glorious image of God. प्रशांत दादाने ऑलरेडी आपल्याला सांगितलं आहे की देवाने आपल्यासाठी आपला पाप धुवून आपल्या देवाच्या स्वरूपात आणला आहे. And we are made righteous only because of the blood of the Lamb. फक्त आणि येशूच्या रक्तामुळे आपल्याला चांगलं धार्मिक केला गेला आहे. Hallelujah. Hallelujah. That's what Romans chapter 8, 28, 29, 30 says. Whoever is called, they are sanctified, they are made glorified, and they are justified, and they will be glorified. आणि हेच लिहिलं गेलं आहे रोम्याच्या 8:28 मध्ये, जे कोणाला बोलवलं गेलं आहे त्यांना ईश्वराने महिमाच्या स्वरूपात बोलवलं आहे. Amen. Amen. So now how many of you are baptized here? आणि आपल्यापैकी किती लोक असे आहेत ज्यांनी बॅप्तिस्मा घेतला आहे? Do you have faith in that Christ? काय आपल्याला येशूवर विश्वास आहे का? आहे. हो. Yes? Yes. हो. Yes? हो. Hallelujah. Hallelujah. So we will read one chapter from the Gospel of Matthew, chapter 24, verse from 1 to 14, but big chapter it is there. I want you everybody to read quickly by yourself in your mobile, in your Bibles in Marathi. Everybody read. मॅथ्यू Chapter 24, verse 1 to 14. 1 to 14. मत्ती का सुसमाचार 1 से 14 तक. कितने लोगों को हिंदी समझ में आता है? मती 24. कितने लोगों को हिंदी समझ में आता है? सब लोग को? तर हिंदी में बात करो. हिंदी में बोलेंगे मैं? हाँ? ज्यादा टाइम हो रहा है ना, तो इसीलिए आप मत्ती सुसमाचार को लिए पहला से 14 वचन तक हम कुछ वचन देखेंगे. आप कुछ जल्दी से जल्दी पढ़ना क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. सब लोग बोलकर एक जोर से पढ़िए, सब लोग जल्दी. मग येशू मंदिरातून बाहेर निघून चालला असता त्याचे शिष्य त्याला मंदिराच्या इमारती दाखवयास जवळ आले. तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, हे सर्व तुम्हाला दिसते ना? मी तुम्हाला खचित सांगतो
येथे चिऱ्यांवर असा एकही चिरा राहणार नाही की जो पाडला जाणार नाही. तो जैतुनाच्या डोंगरावर बसला असता सिक्स त्यांच्याकडे एकांती येऊन म्हणाले, ह्या गोष्टी केव्हा होतील आणि आपल्या येण्याचे व ह्या युगाच्या समाप्तीचे चिन्ह काय हे आम्हास सांगा. येशूने त्यास उत्तर दिले, तुम्हाला कोणी फसू नये म्हणून सावध असा, कारण पुष्कळ जण माझ्या नावाने येऊन मी ख्रिस्त आहे असे म्हणतील व पुष्कळास फसवतील. तुम्ही लढाव्याविषयी ऐकाल व लढाव्याच्या आव्या ऐकाल. घाबरून जाऊ नये म्हणून सांभाळा, कारण असे होणे शक्य आहे, परंतु तेवढ्यात शेवट होत नाही. कारण राष्ट्रांवर राष्ट्र व राज्यांवर राज्य उठेल आणि जागोजागी दुष्काळ व भूमिकंप होतील. पण ह्या सर्व गोष्टी वेदनाच्या प्रारंभ होते. तेव्हा तुमचे हाल करण्याकरिता ते तुम्हास धरून देतील व तुम्हास जीवे मारतील आणि माझ्या नावामुळे सर्व राष्ट्रे तुमचा द्वेष करतील. त्यामुळे पुष्कळ जण अडखळतील, एकमेकास धरून देतील व एकमेकांचा द्वेष करतील. पुष्कळ खोटे संदेष्टे उठतील व अनेकास फसवतील आणि अनिती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती थंडावेल. परंतु जो शेवटपर्यंत टिकून राहील तोच तरला जाईल. सर्व राष्ट्रात साक्षीसाठी म्हणून राजांची सुवार्ता सर्व जगात गाजवली जाईल, तेव्हा शेवट होईल. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू भैया. भाई ने बहुत ध्यान से पढ़ाया. यीशु मसीह ने जब यरूशलेम शहर में जो मंदिर के पास था, यीशु मसीह का शिष्य ने प्रभु का मन को कहाँ लेके जा रहा था? बिल्डिंग के तरफ. हाँ प्रभु जी, कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर शहर है, यहाँ पे देखिए, ऐसा बोल रहा था. यीशु को बोल रहा था, सर्व सृष्टिकर्ता यीशु को बोल रहा था. जब यीशु ने ये बात सुना, वचन सुनकर कहते हैं, आप ये सब देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, एक जमीन पे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं ठहरेगा. ये तो दीवार अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं 5 सितारा का होटल में भी एक दोस्त के साथ खाना खाया था, सोया था. उतना आनंद, जितना आनंद यहाँ पे मिल रहा है, इतना खुशी यहाँ पे मिल रहा है, वहां पे नहीं मिला. हालेलुया. मुझे लग रहा है आप परमिशन दिए तो हम इधर ही रात बिताएंगे, प्रार्थना में बिताने. हम घर वापस पास्टर अंकुश बादर अंकुर के साथ आशागढ़ जाने के मन नहीं है मेरे लिए. इधर ही प्रार्थना करेंगे, जितना आप शक्ति प्रभु देगा इधर गुजारेगा, ऐसा लग रहा. हम किसी से, मैं पहले बोल दिया आपको, मैं बैंगलोर हैदराबाद में था, बैंगलोर में था, चेन्नई घूमा, दिल्ली घूमा. बहुत सारे बड़ा बड़ा मीटिंग भी देखा मैंने, चर्च देखा. सारे चर्च में आजकल हो रहा है वो सारे मैं 25 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ. 10-15 साल मुझे सीखने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया. मगर मैं सच्ची आराधना क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, सच्ची विश्वास क्या है, ये गहराई से मैं खोज कर, गहराई से एनालिसिस मतलब ध्यान से देखा. इसलिए मुझे अधिकार है. हालेलुया. प्रभु से दिया हुआ अधिकार है सच्चा वचन बताने के लिए. आमीन, आमीन. जब बच्चे एबीसीडी सीखते हैं, एबीसीडी में ही नहीं रहना. एबीसीडी 26 अक्षर है. एबीसीडी बुनियाद है इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में. ABCD EFGH XYZ अंग्रेजी में बुनियाद है. जब एबीसीडी सीखने के बाद वो बड़ा बड़ा अक्षर सीखना है, सब्जेक्ट सीखना है, आगे बढ़ते रहना है ना. हम एबीसीडी के पीछे घूमना नहीं. मुझे लगता है आजकल सारे कलीसिया में सारे लोग आज चर्च के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे क्या हो रहा है, पुराना नियम में ही लोग जाते हैं, पुराना नियम में ही बताते हैं. मगर नया नियम में इतना सब कुछ सीखने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से लिखा, वो लोग बोलने में बहुत कम सीखा. इसीलिए मैंने प्रशांत को 30 मिनट दिया, भाई को, आप जल्दी करो, कलीसिया को मैं कुछ खास बात बतानी है. आज रात में आपको ऐसा का चीज बताने जा रहा हूं, आपका विश्वास मजबूत होने जा रहा है. हालेलुया. मैं ये सच्ची सुसमाचार को, सुसमाचार प्रभु यीशु ने दिया है, अपोस्तल प्रेरितों को दिया है. वो सुसमाचार क्या होते हैं? आजकल ये जब शिष्य ने इनको यीशु का मन बिल्डिंग और शहर की ओर दिखाया, प्रभु ने क्या किया, क्या बताया? एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, मतलब सारा बिल्डिंग टूट जाएगा.
बहुत सारे चीज बताया प्रभु ने। एक दिन आ रहा है, आज रात हो सकता है, कल भी हो सकता है, किसको पता है आज अजित पवार मरने वाला है? पता है नहीं। आपका? अजित पवार दुनिया छोड़ दिया सुबह 9 बजे के पहले। कोई सोचा है क्या? वो मुंबई से हवाई जहाज में आया था। किसका जीवन किसका हाथ में है पता नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है? अंत में बहुत सारे चीज बताया बाप यीशु ने। भूकंप आ जाएगा, भूखा मर जाएगा, युद्ध हो जाएगा, एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र, एक जाति दूसरा जाति, एक लोग दूसरे लोगों से लड़ाई होगा। ये सब प्रभु का आगमन के लिए सूचक है। या यीशु आज रात होने दो, कल आने दो, 10 दिन के बाद, ये 100 दिन के बाद, एक साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 10,000, 1 लाख साल के बाद आने दो। हम विश्वास में ठहरने का जरूरी है। आमीन। हमारा विश्वास मजबूत होने जाना, हमारा विश्वास दृढ़ होते जाना है। कुछ दिन पहले मैं भी न्यूज देख रहा था। ट्रंप अमेरिका अध्यक्ष ने एक जगह को हड़पना चाहता था, कब्जा करना चाहता था, ग्रीनलैंड बोल के। पूरा यूरोप, पूरा देश में, पूरा यूरोप में, अनेक देश में उलट पुलट हो गया। अमेरिका के से लड़ाई करने के लिए भी तैयार था। वो लोग दोस्ती में है, नाटो बोल के वो लोग एक संबंधी थे, मगर उन्हीं के बीच में लड़ाई होने जा रहा था। अभी भी यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ये सारे चीज आप कुछ लोगों को पता होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये सब होने वाला ही है, होते रहता है, मगर हमारा विश्वास दृढ़ रहना है। हालेलुया। हमारा विश्वास यीशु में रहना है। संसार के चीज में हमको चाहिए, क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए। प्रभु क्या बोला मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 30, 31, 32, 33 में, मेरा राज्य और नीति को खोजो, मैं सब आपको मिल जाएगा, है ना? पानी, खाना, कपड़ा, घर, ये सब चले जाएगा। अंबानी का घर बनाया है, जब भूकंप आए तो वो भी नहीं हिलेगा। किसको पता है हिलेगा नहीं हिलेगा? उनको पता है क्या? नहीं। भूकंप आने के बाद पता चलेगा, वो भी मालूम नहीं होगा, है ना? ये भाई भी मुंबई आया था, ये हैदराबाद में रहता है ना। अंबानी का घर जानना नहीं बोला, देखना था मेरा, ऐसा कोई सोचता है अंबानी का, वो सब ठीक है, मगर वचन में प्रभु कहा नहीं कहा, खुद प्रभु यीशु का मुंह से ये बात आया नहीं आया? आया है ना? मगर कुछ लोग चर्च में, कलीसिया में, नहीं मैं 100 साल जीना है, मैं 200 साल जीना है, मैं 1000 साल जीना है। ठीक है, दिया तो जियो, प्रभु दिया तो जियो, मगर 100 साल तक विश्वास में क्या रहना? मजबूत। अरे एक 10 साल से विश्वास किया है, 20 साल से विश्वास किया, 30 साल से विश्वास किया, जब 100 साल तक जीने तक कितना विश्वास बढ़ना है? एज के साथ 100, 20, 30 वो भी बढ़ रहे हैं, विश्वास भी बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए। मगर हमारा विश्वास कैसा है, किस चीज में है? मगर वचन कहता है आजकल ये सब चीज हो रहा है ना, आजकल हो रहा है ना, हो रहा है। मगर कलीसिया को एक प्रभु वचन कहता है, 4 वचन, 4 वचन पढ़िए, 24:26 का 4 पढ़िए, मत्ती सुसमाचार। ऐसा समय में येशूने त्यास उत्तर दिले, तुम्हाला कोणी फसू नये म्हणून सावधान असा। सावधान बोलो, क्या है? सावधान, सावधान, जोर से बोलिए ना, आप तो मराठी में बोले, सावधान, सावधान, विश्राम, सावधान असा। क्यों सावधान असा? उसके बाद पढ़िए 5वें, कारण पुष्कळ जण माझ्या नावाने येऊन मी ख्रिस्त आहे असे म्हणतील व किसका नाम पे आएगा? माझा नाम में क्या करने के लिए आएगा? क्या करने के लिए आएगा? फसाने के लिए। फसाने के लिए। आपका भाषा में क्या बोल रहे हैं? फसवते। आजकल आप मार्केट में जाएगा, जो शहर में 100 में मिलते हैं, यहाँ पे कितने में बेचते हैं?
200-300 1000 में जो मिलता है यहाँ पे डबल बेचता है। मैं देखा दानों में लूट रहे आप लोगों को, यहाँ पे लोग फंसाते हैं ना लोग। ये सच्चा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मुझे भी लोग फंसाते हैं यार शॉप में जाने के लिए, इसीलिए मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ शॉप में। मुंबई में मेरा वाइफ है ना, ऑनलाइन में बुक किया, फंस गया। रिफिल ऐसा इसके अंदर रिफिल रहता है ना, उसने मुंबई में शॉप में नहीं मिल रहे बोल के ऑनलाइन में बुक किया। 250 या 200 पेन रिफिल, वो कुछ कंपनी का यूज करते हैं। वो लोग क्या किया ऑनलाइन में, ऐसा एक डब्बा में 2-3 पेन पैक करके बेच दिया। जब खोलेगा तो 200 रिफिल नहीं था, 2 पेन था। मैं बोला तू फंस गया। वो वापस क्या किया, कैंसिल कर दिया, अभी तक नहीं आया। दुनियादारी लोग फंसाने में कमाई कर रहे, बुराई से कमा रहे, लोगों का लूट रहे। ये खराब है, ये सच है, ये गलत है, सही है, गलत है। वो लोग अभी धनवान बन जाएगा, एक दिन प्रभु का सामने झुकना होगा। हालेलुया। एक दिन प्रभु हिसाब मांगेगा, कितना गरीबों को लूटने दो, कितना धनवान बनने दो, जो भी होने दो, मगर एक दिन सर्व सृष्टिकर्ता राजाओं का राजा के सामने हिसाब देना ही होगा। हालेलुया। कोई भी लूटने दो, आप चिंता मत करो, मेरा यीशु देखेगा। बोलो हालेलुया। डोंट वरी, फंसाएगा, मगर एक सावधान की बात बता रहा हूं, कलीसिया में आजकल फंसाने का बोधन हो रहा है। आजकल गुमराह करने के लिए ऐसा क्या हो रहा है, टीचिंग दे रहा है। गलत टीचिंग भी किसका नाम पे हो रहा है, मेरे ही नाम पे, मज़ाही नाम पे। मज़ाही ऐसा चीज देखकर आप आकर्षित नहीं होना, ऐसा चीज देखकर आपका विश्वास में सड़क नहीं, इधर नहीं, भागना नहीं, घूमना नहीं। मैं अनुभव से बता रहा हूं, आपको प्यार से बता रहा हूं। आजकल कलीसिया में दूसरा सुसमाचार बताया जा रहा है यीशु के नाम पे। गलतियों का पत्र 1 अध्याय, आप सावधान से रहना है, ऐसा सुसमाचार में नहीं पढ़ना आप लोग। एक 6 से पढ़िए, पहला गलतियों का पत्र 1 अध्याय 6 से पढ़िए। यहाँ पे इसमें वचन कहता है, प्रभु का नाम पे ही सेवा हो रहा है, प्रभु का नाम पे ही सुसमाचार दे रहे हैं, प्रभु का नाम पे ही कर रहे हैं सब कुछ। मगर क्या बता रहे हैं, किस तरह की सुसमाचार वो लोग बता रहे हैं? हाँ, गलेशियंस गलती, सॉरी। मला आश्चर्य वाटते, हाँ हो सही है, हाँ बोलिए सिस्टर, की ज्याने तुम्हास ख्रिस्ताच्या कृपेने पाचारण केले, त्याच्यापासून तुम्ही इतके लवकर अन्याय सुवार्तेकडे वळत आहात। ती दुसरी नाही, पण तुम्हास ठोकाडे करत पाडणारे व ख्रिस्ताची सुवार्ता विपरीत करून पाहणारे असे कित्येक आहेत। परंतु जी सुवार्ता आम्ही तुम्हास सांगितली, तिच्याहून निराळी सुवार्ता आम्ही सांगितली, किंवा स्वर्गातून आलेल्या देवदूताने सांगितली, तरी तो शापग्रस्त असो। समझ में आया जो बहन ने पढ़ाया? इधर आओ बेटी, हाँ बेटी। सो ऐसा सुसमाचार जो मैं बताया, इसके बिना कोई ऊपर से स्वर्ग से देवदूत बनकर आकर आपके पास में दूसरा सुसमाचार बताए तो वो आप विश्वास क्या करना? मैं मुंबई से आया है, क्या नाम है बेटी? मुंबई से। व्हाट इज योर नेम? हाँ, मैं तुम्हारे लिए गोल्ड बैंगल लेकर आया, सोना का बैंगल। ये सोना है ना? इधर ये सोना है बेटी, ले लो, बहुत कीमत है, 1 लाख का है, तू लेना, इससे अच्छा कोई गोल्ड नहीं मिलेगा। ऐसा मैं पूछकर इनको ये बैंगल दे
दे सकता हूं, मगर ये विश्वास करके यही सोना का बैंगल है लेकर विश्वास में घूमे तो क्या होगा अंत में? इसको एक दिन पता चलेगा ये सोना नहीं है, ये प्लास्टिक है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ये प्लास्टिक है। आजकल यीशु का नाम पे कलीसिया में गलत सुसमाचार फैल रहा है, आप सावधान रहना। हालेलुया। हमको BYM क्यों पसंद है? यहाँ पे सच्ची सुसमाचार बताया जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे तरीका अपोस्तल को तरह, प्रेरितों के तरह कलीसिया बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? आप कुछ कहां पे हो रहे हैं, किसी का नाम, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई अद्भुत कार्य कर रहा है, किसी के पास जाने से चंगाई मिल रहा है, किसी के पास जाने से शांति मिल रहा है, किसी के पास जाने से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। प्रभु का नाम पे आने वाला दास से चंगाई नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता, प्रभु से मिलता है। वो प्रभु यहाँ पे जिंदा है। हालेलुया। वही प्रभु यहाँ पे ये रात में ये गांव में है। हालेलुया। वही प्रभु आपके अंदर है। हालेलुया। क्या वहां चंगाई करने वाला यहाँ नहीं कर सकते? वहां जाकर प्रार्थना सुनने वाला यहाँ प्रार्थना नहीं सुनते? फिर क्यों भटकना? क्यों भटकना? आजकल कलीसिया में पास्टर शांता के पास गए तो वचन बहुत बोलता है, अच्छा मुझे जैसा मिलता है, वस्सी में कुछ ही नहीं मिलता, अंकुश के पास कुछ ही नहीं मिलता। अरे ये क्या करने वाला है? फंसाने वाला। मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं अंदर से रो रहा हूं इसके लिए। मेरा अंदर से बहुत बोझ है कलीसिया के लिए। भटक रहे आजकल। शांता पास्टर नहीं तो अंकुश पास्टर, अंकुश पास्टर नहीं तो राज पास्टर, राज पास्टर नहीं तो सिस्टर पास्टर, सिस्टर नहीं तो ऐसा घूमते। आप घूमने वाला नहीं बनना है। हालेलुया। इसीलिए आपका विश्वास दृढ़ हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु के नाम पे होता है ऐसा गलत सुसमाचार। सही समाचार आप सुनना है। आमेन। सही विश्वास में आप रहना है। आमेन। सही मार्ग में आप चलना है। एक दिन आ रहा है, वही लोग खड़ा होंगे, हम सब लोग खड़ा होंगे। मैं वचन बता रहा हूं आपको, मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय 23-26 वचन कहता है, प्रभु यीशु के पास लोग आते हैं। एक अंत में बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा नाम पे मैं अद्भुत काम किया। 22-23 पढ़िए 7वें अध्याय मत्ती सुसमाचार का। यहाँ पे वचन में कहता है, मैं बहुत लोग आते हैं प्रभु के सामने, मैं आपके नाम पे चंगाई किया। बोलिए। मला प्रभुजी असे म्हणणारे प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही, तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल। त्या दिवशी पुष्कळ जण मला म्हणतील, प्रभो प्रभो, आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला, तुझ्या नावाने भूते घालवले व तुझ्या नावाने पुष्कळ महत्त्वकृत्ये केले नाहीत काय? तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट सांगेन की मला तुमची कधीच ओळख नव्हती। अनाचार करणाऱ्यांनो, माझ्या पुढे निघून जा। प्रभु किसी को बोल रहे, किसके बोल रहे? जिसने उसका नाम पे चंगाई किया, प्रचार किया, वचन दिया, सारे कुछ किया, उन्हीं लोगों से बोल रहे मैं आपको जानता भी। आजकल क्या चैलेंज है ना, दास जो बनता है, जो भी प्रभु का काम करना चाहते हैं, वो प्रभु का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। हालेलुया। या छोटा काम या बड़ा काम, प्रभु का अनुसार, प्रभु का मन का अनुसार हम करना है। आजकल बहुत गरीब, बहुत सावधान रहना कलीसिया। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वचन ये आपको सिखा रहा हूँ। अंत में क्या होता है, प्रभु का वचन बोल रहे हैं, बहुत सारे चीज हो रहे हैं कलीसिया के अंदर, दुनिया में। लोग अभी मना कर रहे हैं,
यहाँ से बाहर जाएगा मध्य प्रदेश गुजरात में वचन बोलने के सुविधा नहीं है। ऐसा रात में प्रार्थना करने के लिए सुविधा नहीं है। पीट रहे, मार रहे, लोगों को जेल में डाल रहे, पास्टर को गोबर खिला रहे, पास्टर के सिर पर चप्पल का माला पहन रहे, जबरदस्त से गोबर खिला रहे। उड़ीसा में यही महीने में हुआ 4 तारीख को। हम भी जा रहे थे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। वचन बोलने के अधिकार है मुझे। एक लड़का ने, ऐसा जवान लड़का, मैं तुरंत आपको पुलिस स्टेशन में डालूंगा, मेरे लोग आकर आपको उठा के लेकर जाएंगे। सब मध्य प्रदेश में 5-6 लोग मेरे पीछे आ गए मारने के लिए, आर्ग्यू किया। मैं तैयार था। ऐसा समय में हम जी रहे भारत में। चाइना में डोर बंद किया, कहां पे चलिशा होता है उसको बंद कर रहे, जेल में डाल रहे। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। 14 राज्य में हमारा देश में कानून है जिसका नाम पे, यीशु के नाम पे वचन नहीं बोलना है। मेरा प्रिय भाई बहन, ये रात में आप लोगों से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, आपका विश्वास में आप कैसा रहना है, सावधान रहना है। ऐसा चीज आ जाएगा, मुश्किलें आ जाएगा, विश्वास में रहने के लिए कठिन परिस्थिति आ जाएगी। आपका गांव में, आपका आदिवासी समाज में आप भटकना नहीं चाहिए, आप कमजोर होना नहीं चाहिए विश्वास में। हालेलुया। आप मजबूत बढ़ते रहना है। ऐसा विश्वास हम प्रेरितों के द्वारा हमको दिया हुआ है। कैसा विश्वास है ये विश्वास कैसा है? विश्वास मतलब प्रेरितों का जैसा विश्वास रहना है। हालेलुया। वो लोग कहाँ प्रार्थना करते थे? रात में शहर में, घर के ऊपर शहर में एक बड़ा घर में प्रार्थना करते थे। ऐसा औरत सब लोग मिलकर, ऐसा विश्वास में आप है, हम बहुत खुशी है। आजकल कलीसिया में जाएगा, एक पीछे लाइट रहना है, डिकचिक डिकचिक लाइट, वही थिएटर में रहता है, वही पब में रहता है, म्यूजिक बजाते रहना, म्यूजिक रहना, ऐसा लाइट जलना है जब लोग आराधना करते करें। क्या लाइट से, बिना लाइट आराधना नहीं कर सकते? हालेलुया। बिना म्यूजिक से आराधना नहीं कर सकते। प्रभु लाइट को नहीं देख रहे, म्यूजिक नहीं देख रहे, सच्चा मन को देख रहे। हालेलुया। सच्चा मन को देख रहे। इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति है। आप इसी विश्वास में आगे रहना है। हालेलुया। भटकना नहीं चाहिए। मैं भी देखा था बेंगलुरु में 2005 में एक बड़ा मीटिंग में गया था। एक बड़ा सेवक आया अमेरिका से, वो भीड़ देखकर टेबल के ऊपर चढ़कर, मैं भी जब खड़ा होगा इतना लोगों के सामने वचन देना है, ऐसा सोच रहा था। इतना लोगों के, धीरे 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 साल बढ़ते बढ़ते मेरा विश्वास को सच्ची विश्वास में लेकर आया। प्रभु ने बोला मेरे नाम पे यहाँ पे 2-3 रहता, मैं वहीं पे रहता हूँ। हालेलुया। मेरा उपस्थिति भीड़ के ऊपर नहीं रहता है, मन के ऊपर। आजकल बहुत कठिनाई है, गलत वचन फैल रहे, आप सावधान रहना है। क्योंकि मैं ये बात आपसे बता रहा हूँ, प्रभु के आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। प्रिय भाई और बहन, आप लोग जानिए किस तरह के विश्वास में है हम। पहला पत्रुस 1:5 में वचन कहता है, वही पे हम प्रेरितों के विश्वास में, मैं अपो प्रेरित पेतुर का वचन से ही आपको सिखाऊंगा 5-10 मिनट। पहला पत्रस 1:5 आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो, जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी आणि अविनाशी निर्मळ व अक्षय वतन मिळवण्यासाठी त्याने आपल्या महादयेनुसार येशू ख्रिस्ताच्या मृतातून पुनरुत्थानाच्या द्वारे आपल्याला पुन्हा जन्म दिला, जे तारण शेवटच्या काळी प्रकट होण्यास सिद्ध आहे ते प्राप्त व्हावे, म्हणून जे तुम्ही ख्रिस्ताच्या भक्तीने विश्वासाच्या योग्य राखलेले आहात, त्या तुमच्यासाठी ते वतन स्वर्गात राखून ठेवले आहे। विश्वास के द्वारा क्या हो रहा है?
विश्वास के साथ क्या हो रहा है? जो विश्वास से सुरक्षित है। आपका विश्वास क्या कर रहा है? आपका उद्धार को, अभी घर से बाहर जाने के लिए ताला लगाते नहीं लगाते हैं? सबके लिए फोन में लॉक लगाते, लॉक ताला, हाँ लगा। सुरक्षित। हमारा उद्धार को यीशु में सुरक्षित करने का चीज क्या है? हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। वही 7वें वचन में पढ़ेगा तो पहला पत्रस 7वें वचन में, ताकि तुम्हारा पक्का हुआ विश्वास, कैसा विश्वास? पक्का हुआ। कैसा रह रहा विश्वास? पक्का। आपका विश्वास पक्का है? डमी है? पक्का है? कितना लोगों का विश्वास पक्का है? हालेलुया। आपका विश्वास पक्का है। जाली नोट। कल मैं बस में आ रहा था, कंडक्टर को कोई 500 रुपए दिया था। वो कंडक्टर ऐसा लाइट के सामने इधर 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 इधर, क्यों? जाली नोट जा रहे हैं। आजकल कलीसिया में लोगों का विश्वास क्या हो रहा है? नकली हो रहा है। कैसा हो रहा है? नकली हो रहा है। यही वचन प्रभु ने कहा है। प्रभु ने मत्ती सुसमाचार वही 24 अध्याय में क्या कहा? लोगों का विश्वास द टाइम 10th 24:10 का पढ़िए भैया आपका भाषा में। मत्ती सुसमाचार। त्यावेळी पुष्कळ जन अडखडतील अड़कड़, हाँ करतील. अड़कड़तिल मतलब बोलिए ना, मुझे समझ में नहीं। अड़कड़तिल मतलब पढ़िए आप। हाँ, एकमेकांना धरून देतील व एकमेकांचा द्वेष करतील. पुष्कळ खोटे संदेश ते उठतील व अनेकांना फसवतील. हाँ 10 पढ़िए। त्यावेळी पुष्कळ जन अडखडतील. अड़कड़तिल बोलिए, क्या होता है अड़कड़तिल मतलब? हिंदी में बोलिए मुझे, क्या है अंकुश? विश्वास से भटक जाएंगे. हाँ, कौन बोल रहे विश्वास से? अब भटक जा रहा है? नहीं है ना? नहीं भटकने का है। हमारा काम है, अंकुश जी का काम है, स्टैनली ब्रदर का काम है, राज का काम है, मेरा काम है, प्रशांत ब्रदर का काम है। आपको भटकना, आप भटक जाएगा। प्रभु हमारा गला पकड़ के, मेरा बच्चे लोगों को क्यों भटक दिया? अभी चरवाही जाएगा भेड़ को लेकर, वो भटकते जाते जाएगा, छोड़ के घर पे आएगा क्या? उसका पीछे जाकर ढूंढ ढूंढ कर घर पे नहीं लेकर आएगा? ऐसा सच्चा चरवाही का आजकल बहुत गलत चीज हो रहा है। विश्वास से भटक जा रहा, लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। जब यीशु वापस आएगा, प्रभु खुद कहता है, जब मैं वापस आऊंगा ऐसा विश्वास में मैं कभी देखूंगा नहीं। किस तरह विश्वास है? अमेरिका में जिस जगह से हमको, इंग्लैंड में जिस जगह से हमको सुसमाचार भारत में आया, अमेरिका में जिस जगह ने लोगों को, पूरा देश को सुसमाचार भेजने में मदद किया, आजकल वही देश विश्वास में भटक रहे, वही लोग विश्वास में कमजोर हो रहे। ये सारे चीज आप ध्यान में रखना प्रिय भाई और बहन। पहला पत्रस वही 9 अध्याय से पढ़ूंगा। पहला अध्याय 9 वचन। और तुम अपने विश्वास के परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हो। 9 वचन पढ़े, पहला पत्रस पहला अध्याय 9 वचन आपका भाषा में पढ़िए, क्या बोल रहे हैं वचन? पाहिले नसताही त्याच्यावर तुम्ही प्रीती करता, आता तो दिसत नसता त्याच्यावर विश्वास ठेवता आणि त्या विश्वासाचे पर्यावसान जे आपल्या जीवाचे तारण ते उपभोगत अनिर्वाच्या गौरवयुक्त आनंदाने उल्हासात ओके। सो ये सारे विश्वास में आप बढ़ते होने के लिए प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। आप घर पे जाकर ये सारे वचन विश्वास किए, क्योंकि हम में भी इतना हिंदी परफेक्ट नहीं है और मेरा भाई ट्राई कर रहा है, हमको आपको ज्यादा टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ऐसा जो टूटा फूटा हिंदी में बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना? जो मैं बताना चाहता हूँ मेरा हृदय के अंदर से आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर से प्रभु यीशु बात करते, क्योंकि ये मट्टी जैसा मेरा आवाज भी मट्टी है। हालेलुया। क्योंकि मेरा ये जैसा ये फोन मेरा हाथ में एक हथियार है, प्रभु का हाथ में मैं भी एक हथियार। बात करने वाला मैं नहीं, ये मेरा बात नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये बात प्रभु यीशु से आना।
विश्वास दृढ़ होना है. विश्वास में हटकतील जो पत्रुस वही पहला अध्याय 21 पढ़े. उस मसीह के कारण ही तुम उस परमेश्वर में विश्वास करते रहे जिसने उसे मरे हुए में से पुनर्जीवित कर दिया और उसे महिमा प्रदान की. इस प्रकार तुम्हारी आशा और तुम्हारे विश्वास परमेश्वर में कैसा रहना है? स्थिर. क्या बोल रहे हैं आपका भाषा में? यहाँ पे विश्वास में स्थिर रहना है. कैसे रहना है? स्थिर, कड़क रहना है. तो बहुत सारे वचन है. हम ये सब आप सबको वचन में लाने के लिए हमारा मकसद है. सच्चा वचन बोलना हमारा जिम्मेदारी है. क्या है हमारा जिम्मेदारी? और दूसरी बात, जैसा आप वचन सीखते सीखते जाएगा, आप भी दूसरों को यही विश्वास में लेकर जाना आपका जिम्मेदारी. हालेलुया. इसलिए जब मुझे क्या अच्छा लगता है जब बहन लोग इधर आते गाना गाते हैं. आमीन. सब लोग ऐसा आना गाना गाना. ऐसा भाई लोग आते वचन में बहुत प्रार्थना करते, वचन देते हैं, बहुत सुर करते. कुछ जगह पे जाएगा, एक ही सेवक वचन बताते रहेगा, उन्हीं के पत्नी बताते रहेगा सारे दिन. ये कलीसिया है क्या? ये व्यापार है. यीशु के नाम पे व्यापार है. प्रभु एक का हाथ में नहीं दिया कलीसिया का. कोई उसका माँ बाप का संपत्ति नहीं है कलीसिया. प्रभु यीशु का है. आमीन. आमीन. आप भी गा सकते हैं, आप भी वचन दे सकते हैं, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी वचन सब कुछ कर सकते हैं. कोई एक ही परिवार का नहीं. हालेलुया. अगर बड़ा बड़ा कलीसिया एक ही नाम पे जा रहा है, ऐसा व्यापार हो रहा है. ऐसा विश्वास में आप भड़कना नहीं चाहिए. हालेलुया. समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा अच्छा गाना गा रहा है, कोई चंगाई हो रहा है, उसके पीछे मैं कभी भी भटकना नहीं है. प्रिय भाई और बहन, आप लोग वचन ज्ञान से सुनना है. पत्रुस 5वीं अध्याय 8 से 11. यह विश्वास कैसा रहना है? मैं सारे विश्वास के बारे में प्रेरितों अपोस्तल पत्रस के द्वारा लिखा हुआ विश्वास बता रहा हूं. ओनली पत्रस के पुस्तक से हम विश्वास से सीख रहा हूं. आज बहुत सारे पत्र में विश्वास के बारे में है. हाँ, पहिला सावध पत्र. असा, हा. जागे राहा. तुमचा शत्रू सैतान हा गरजणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावे हे शोधत फिरतो. त्याच्या विरुद्ध विश्वासात दृढ असे उभे राहा, कारण तुम्हाला माहित आहे की जगातील तुमच्या बंधुवर्गाला अशीच दुःखे भोगावी लागली आहेत. आपल्या सार्वकालिक गौरवात यावे म्हणून ज्याने येशू ख्रिस्तामध्ये तुम्हाला पाचारण केले, तो सर्व कृपेचा देव तुम्ही थोडी वेळ दुःख सोसल्यावर स्वतः तुम्हाला पूर्ण दृढ़ व सबल करील. थोड़ा समझ. कलीसिया में, परिवार में, हमारा खुद का जीवन में मुश्किल आता है, कठिनाई आता है, गरीब चीज आता है, मगर वो सारे चीज हमारा विश्वास कैसा होना है? दृढ़ बनते रहना है. हालेलुया. दृढ़ होते रहना है. कुछ नहीं हुआ इसीलिए प्रभु को छोड़ना, वचन को छोड़ना, संगति में नहीं आना, कलीसिया में नहीं आना, वो विश्वास नहीं होती है. आमीन. आमीन. जो भी हो, यीशु मसीह हमेशा रहेगा. आमीन. आमीन. ऐसा विश्वास हो, दृढ़ रहना है. वचन कहता है, नहीं कहता है? कुछ दिन के लिए हो जाएगा, मगर बदलने वाला प्रभु यीशु है. हालेलुया. आज आपका घर में, आपका जीवन में, आपका गांव में कोई भी परिस्थिति हो, घर में कोई भी परिस्थिति हो, जब आपके विश्वास मजबूत बनेगा, प्रभु यीशु में उद्धार में रहेगा, प्रभु वो विश्वास को दृढ़ करेगा, संभालेगा, आपको भलाई करेगा. एक दिन आ रहा है, वही विश्वास से लेकर हम अनंत जीवन पाने वाला है. ये विश्वास जब प्रभु का आगमन में क्या हो रहा है? लोग भटकते जाएगा, हड़कड़तील. बहुत लोगों का विश्वास क्या हो रहा है आजकल? हड़कड़तील, भाग रहे. वो विश्वास नहीं है. अंत में हम ये वचन पढ़कर खत्म करेगा. दूसरा पेत्रुस पहला अध्याय 3 से 11 पढ़े. बहुत लंबा वचन है, मगर ये गहराई से लिखा है, पवित्र आत्मा ने लिखा है हम सबको सिखाने के लिए. दूसरा पेत्रुस पहला अध्याय 3 से 11. जल्दी कोई हिंदी मराठी. ज्याने तुम्हा आम्हाला आपल्या गौरवासाठी व सात्विकतेसाठी पाचारण केले, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत.
त्याच्या योग्य मौल्यवान व अति महान अशी वचने आपल्याला देण्यात आली आहेत, ह्यासाठी की त्याच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे. ह्याच कारणास्तव तुम्ही होईल तितका प्रयत्न करून आपल्या विश्वासात सात्विकतेची, सात्विकतेत ज्ञानाची, ज्ञानात इंद्रियदमनाची, इंद्रियदमनात धीराची, धीरात सुभक्तीची, सुभक्तीत बंधुप्रेमाची व बंधुप्रेमात प्रीतीची भर घाला. कारण हे गुण तुमच्यामध्ये असून ते वाढते असले तर आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या ओळखीविषयी तुम्ही निष्क्रिय व निष्फळ ठरणार नाही, असे ते तुम्हाला करतील. ज्याच्या अंगी हे ते नाहीत तो आंधळा आहे, अदृष्टीचा आहे, त्याला आपल्या पूर्वीच्या पापापासून शुद्ध झाल्याचा विसर पडला आहे. म्हणून बंधून तुम्हाला झालेले पाचारण व तुमची निवड दृढ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा. असे तुम्ही केल्यास तुमचे पतन कधी होणार नाही आणि अशा प्रकारे आपला प्रभू व तारणारा येशू ख्रिस्त ह्याच्या सार्वकालिक राज्यात जयोत्सवाने तुमचा प्रवेश होईल. हाँ, जयोत्सवाने तुमचा प्रवेश होईल. हाँ। कभी आपको अंबानी बुलाया उनका घर में, उनका बेटा का शादी में बुलाया? मुंबई में रहते, वो बड़ा भाई को भी नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया। मगर यीशु बुला रहा है नहीं बुला रहा है? बुला रहा है ना। कभी मोदी उनका घर में खाना के लिए बुलाया आपको? बुलाया? यीशु बुलाया नहीं बुलाया? बुलाया. हालेलुया। हालेलुया. इतना प्यार को हम, इतना विश्वास से प्रभु को हम खोजना है। हमें प्रिय भाई और बहन, विश्वास में भटकना नहीं। जो भी होने दो दुनिया में, हमारा विश्वास दृढ़ रहना है, हमारा विश्वास पक्का रहना है, हमारा विश्वास स्थिर रहना है, हमारा विश्वास यीशु में ही रहना है। आमीन। यीशु के नाम पे कोई अच्छा गाना गाना रहे, गाना में विश्वास नहीं, जिसके नाम पे वो गाना गाना जा रहा है वही के नाम पे विश्वास करना है। गाना गाने वालों पे विश्वास नहीं, वचन देने वालों में विश्वास नहीं, किसी के द्वारा चंगाई हो रहा है उसमें विश्वास नहीं, यीशु में विश्वास करना है। हालेलुया। आप यीशु को छोड़कर इन्हीं लोगों में, इसी चीज में विश्वास में आया था, आपका विश्वास क्या हो रहा है? भटक रहा है। उड़ील क्या बोला? अड़कतिल। वो बात मुझे अच्छा लगा, अड़कतिल है। तुम्हारा विश्वास क्या हो रहा है? अड़कतिल। वो विश्वास नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास है? हम प्रेरितों का विश्वास पे रहना। हालेलुया। प्रेरितों का विश्वास। समझ में आया ना? समझ। मैं वचन मराठी में सीखेगा, आपको अच्छा बताएंगे। अच्छा मेरा यही आशा है कि जिस जगह पे मैं जाता हूँ यीशु के नाम पे, उस जगह में यीशु के नाम पे जो सच्चा समाचार मुझे मिला है वही सुसमाचार देना ही मेरा जिम्मेदारी है। हालेलुया। कोई कमजोर है विश्वास में आज रात, किसी के पास नहीं जाने का। यहाँ पे कलीसिया है, आपको यहाँ पे दास लोग है। अंकुश एक विश्वासी होकर अभी मिशनरी बन गया, वो ऐसा बच्चे हैं, वो कोई भी बनने, कलेक्टर बनने दो, आईपीएस बनने दो, या इंजीनियर बनने दो, डॉक्टर बनने दो, ये बेटी कौन सा भी बनने दो, या शादी करके बर्तन घसने दो, बच्चे पैदा करने दो, मगर विश्वास में दृढ़ रहना। एक दिन अनेक लोगों को विश्वास में चलाने वाला है। हालेलुया। देखो वो बहन, अच्छा लोग कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। कुछ चर्च में ऐसा लोगों को खड़ा करके ऐसा गाना गाने के भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को आता है, दूसरे लोगों को गाना नहीं आता है। उन्हीं लोग देवदूत बनकर भूमि पृथ्वी पर, ऐसा चीज कलीसिया में हो रहा है नहीं हो रहा है? ये वचन के अंदर है क्या? प्रभु वचन कहता है कलीसिया के अंदर बहुत लोग गाना गा सकते हैं, बहुत लोग प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत लोग वचन दे सकता है, बहुत लोग सुसमाचार बांट सकता है। हालेलुया। ये सारे काम आप भी करना है। आमीन। वही सच्ची सुसमाचार, वही सच्ची कलीसिया है। जिस जगह एक ही आदमी का, एक ही परिवार का चलता है, वो कलीसिया भी नहीं है। मैं वचन के अनुसार बताऊंगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, ऐसा विश्वास में भटकने वाले कलीसिया को हम पूरा रात प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप रहेगा इधर, प्रार्थना कभी करने जा रहे हैं, रहेगा 4 बजे तक? कितना लोग रहेगा?
कितना लोगों का विश्वास स्थिर होगा या दृढ़ होगा या उड़कती लोग देखेंगे? कितना लोग रहेगा? नहीं, आप थक गया है, काम करके आया है, हम छोड़। ऐसा विश्वास उड़कती चीज आप के अंदर है। किसी कोई फंसने वाला है, कोई फंसने के लिए आपके पास आएगा, वचन दिएगा, वो देगा। वचन हमको पता है, हमारा BYM में प्रभु लोगों को हमको सिखा रहे बोलना हालेलुया। मगर आप खुद जाकर किसी के पास वचन बताना है। आमेन। चलिए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करो। प्रभु आज आप कुछ सिखा रहे, वचन में सिखाया। प्रभु मुझे मेरा विश्वास, सच्चे विश्वास में, प्रेरितों का विश्वास में चलाइए। मेरा विश्वास को और दृढ़ कीजिए, प्रेरितों के जैसा, प्रथम कलीसिया जैसा, जो यरूशलेम में पहला कलीसिया था। पहला कलीसिया में जो लोग विश्वास किया, उन्हीं लोगों को विश्वास में मेरा विश्वास उन्हीं लोगों की तरह मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए, स्थिर कीजिए, आशीष कीजिए। ऐसा प्रार्थना कीजिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। सारे लोगों का विश्वास को प्रभु मजबूत करेगा, आपको आशीष करेगा। आपका विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का कृपा से, आप अनुग्रह से आप अनंत जीवन पाने वाला है। सब लोग प्रार्थना में रहिए, विश्वास से प्रार्थना। आप विश्वास में भटकना नहीं, आप विश्वास में कमजोर होना नहीं। जो भी हो, विश्वास का कर्ता, विश्वास आपके अंदर शुरू करने वाला, आपको विश्वास को मजबूत करने वाला, आपको विश्वास को और आगे चलाने वाला। होय रे बाप्पा, आज आम्हाला खरेच दे बाप्पा, तू वचनाच्या द्वारे आमच्या शिकवलं असते बाप्पा, तुझं वचन आम्हाला प्रगट केलं असते बाप्पा। प्रभू आज आम्हाला खरेच दे बाप्पा, आज विश्वासाविषयी दे बाप्पा, तू आम्हाला सांगितलंस प्रभू आज खरेच दे बाप्पा, तुझं वचन आम्हाला प्रगट केलं असते बाप्पा, की प्रभू तू आम्हाला जसं वचनाच्या द्वारे सांगितलंस की ख्रिस्ताच्या नावामध्ये लोक तुम्हाला येऊन फसवतील दे बाप्पा, जसं आम्हाला सांगितलं की दे बाप्पा येणाऱ्या दे बाप्पा जे काही दे बाप्पा, जसं दे बाप्पा असं वाईट होतील दे बाप्पा, असं येणाऱ्या समय दे बाप्पा भरपूर असं परिस्थिती येतील, परंतु तुम्ही असं विश्वासामध्ये राहावे असं दे बाप्पा तू आज आम्हाला बोललास दे बाप्पा। प्रभू आज जसं दे बाप्पा तू आम्हाला जसं प्रेसिडाच्या दे बाप्पा, जे काही दे बाप्पा तू आम्हाला जसं प्रेसिडाचा विश्वास दे बाप्पा आमच्यामध्ये वाढव दे बाप्पा, जसं आम्हाला प्रेसिडाचं आम्हाला चालव दे बाप्पा। आज आम्ही खरेच दे बाप्पा असा विश्वास ठेवून दे बाप्पा, आम्ही दूर राहिले पाहिजे दे बाप्पा, आम्ही विश्वासामध्ये वाढावे पाहिजे दे बाप्पा। आमचा प्रति दिवस दे बाप्पा विश्वासामध्ये आम्ही हर एक दे बाप्पा वाढावे दे बाप्पा असं दे बाप्पा, तू आम्हाला वचनाच्या द्वारे दे बाप्पा, तुझ्या सेवकाच्या द्वारे दे बाप्पा आज आम्हाला प्रगट केलं दे बाप्पा। आज खरेच दे बाप्पा तू आम्हाला विश्वासामध्ये वाढव दे बाप्पा, आज अधिक अधिक दे बाप्पा आम्ही तुझे गौरव करावे दे बाप्पा। आज आम्हाला हर एक दे बाप्पा जसं दासाच्या द्वारे दे बाप्पा, जसं दे बाप्पा तू आम्हाला संदेशाच्या द्वारे दे बाप्पा, तू आम्हाला जसं दे बाप्पा आम्हाला खरेच दे बाप्पा असं वाढव की दे बाप्पा, आम्ही दे बाप्पा जसं येणाऱ्या दिवशी दे बाप्पा आम्ही अधिक अधिक वाढावे दे बाप्पा। तुझे वचनात दे बाप्पा तू आम्हाला सांगितलं की आम्ही कधी भटकू नाही दे बाप्पा, की दे बाप्पा जे ठिकाणी आम्हाला ठेवलंच दे बाप्पा, ते ठिकाणी दे बाप्पा आम्ही हर एक दे बाप्पा संकटासमयी दे बाप्पा आम्ही दे बाप्पा तुझ्या इच्छेप्रमाणे आम्ही चालावे दे बाप्पा। आणि दे बाप्पा आम्हाला तुझं वचन तू प्रगट केलं दे बाप्पा, की जो कोणी शेवटपर्यंत टिकेल तोच तरला जाईल। आज खरेच दे बाप्पा तू आम्हाला वचन दिलंस दे बाप्पा, जसं वचनाच्या द्वारे दे बाप्पा तू आम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने आम्ही दे बाप्पा हर एक दे बाप्पा आम्ही विश्वासामध्ये वाढावे दे बाप्पा, आणि आम्ही अधिक अधिक दे बाप्पा आम्ही दे बाप्पा एक प्रार्थनाचं जीवन जगावे दे बाप्पा। हो दे बाप्पा तू आज आम्हाला खरेच दे बाप्पा असं विश्वासामध्ये वाढव दे बाप्पा, जसं प्रेसिडाच्या दे बाप्पा द्वारे दे बाप्पा हर एक मंडळीमध्ये दे बाप्पा वाढ केली दे बाप्पा, जे वचन दिलंस दे बाप्पा तेच वचन दे बाप्पा आम्ही शेवटपर्यंत दे बाप्पा घेऊन चालावे दे बाप्पा, आणि ते वचन दे बाप्पा आम्हाला प्रगट करावे दे बाप्पा। आज आम्ही खरेच दे बाप्पा जसं प्रेसिडांचे दे बाप्पा जुना मंडळी होते दे बाप्पा, त्या पद्धतीने दे बाप्पा जिथं कुठे आम्हाला ठेवलंच दे बाप्पा तिथं दे बाप्पा आम्हाला शेवटपर्यंत दे बाप्पा असं विश्वासामध्ये वाढव दे बाप्पा। हो दे बाप्पा तू आमच्यामध्ये कार्य कर दे बाप्पा। होय प्रभू तुमचे गौरव आणि तुमचे महिमा होऊ दे बाप्पा। या समय माझ्या वतीने आणि सर्वांची वतीने असं लागू केलेली प्रार्थना आणि विनंती प्रभू येशूच्या नावात करतो, आमेन।